Did you know that caustic soda is so powerful that it can dissolve certain metals? Stay tuned to discover more about its incredible properties. Hello, chemical enthusiasts. Welcome to my channel where we explore wonders of science. I am Teba Ghaffar and today we have an exciting topic to delve into caustic soda. Get ready to uncover the powerful chemistry behind this fascinating substance. Caustic soda on industrial level. In today's video, we will discuss introduction of caustic soda, flow sheet diagram of caustic soda, applications and safety precautions of caustic soda. What is caustic soda? This is an important chemical which is obtained by electrolyzing sodium chloride solution in electrolytic containers. Caustic soda एक important chemical है जो कि sodium chloride solution की electrolysis से obtain करते हैं. Sodium chloride dissolved in water forms a solution known as brine. Brine acts as a raw material for the manufacturing of caustic soda on industrial level. caustic soda को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है. caustic soda कॉमन नेम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम है. caustic soda हमारे पास टिपिकली पैलेट्स, फ्लेक्स, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में अवेलेबल है. इसके लिक्विड सोल्यूशन को हम लाइ बोलते हैं, which has high concentrations of sodium hydroxide dissolved in water. Here you can see caustic soda in form of flakes, in form of lye, or solution in form of pellets. Let's discuss some properties of caustic soda. Physical properties. It is white solid. It is odorless. It is readily soluble in water and forms a strong alkaline solution. It is hygroscopic. It absorbs moisture from its surroundings. Chemical properties. It is a strong base, meaning it readily releases its hydroxide ions in water. It is highly caustic and corrosive. While caustic soda is called caustic just due to its corrosive nature on animal and plant tissues, upon contact with skin, it produces severe burns. It is strong enough to decompose animal tissues and proteins. That's why proper precautions should be taken while handling caustic soda to ensure personal safety. It reacts exothermically with water. Yes, when we dissolve caustic soda in water, it releases significant amount of heat. Production of caustic soda on industrial level involves following steps. We will discuss each of them one by one. डायफ्राम सेल प्रोसेस. ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस से सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस करते हैं. सबसे पहले हम इसका सेटअप देखते हैं. ये हमारे पास एक स्टील का वेसल है जिसे हमने दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया है थ्रू परफोरेटेड एस्बेस्टोस डायफ्राम. ये हमारे पास टाइटेनियम एनोड है विच इज पॉजिटिवली चार्ज. ये हमारे पास स्टील कैथोड है विच इज नेगेटिवली चार्ज. यहाँ से हम अपने सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को एंटर करेंगे और यहाँ से हम क्लोरीन गैस को कलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम हाइड्रोजन को कलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को लेंगे. हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं. आयनाइजेशन, रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड. सबसे पहले होगी इसकी आयनाइजेशन. हमने सोडियम क्लोराइड को एंटर किया तो हमारे पास ये आयनाइजेशन से हमारे पास सोडियम आइंस, क्लोराइड आइंस, हाइड्रोजन आइंस और हाइड्रोक्साइड आइंस प्रोड्यूस होंगे. सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन एट कैथोड. ये हमारे पास कैथोड है. अब हमने जो अपना ब्राइन को एंटर किया था वो था एनोड कंपार्टमेंट. यहाँ से परफोरेटेड डायफ्राम से सोडियम आइंस क्रॉस करके इस कैथोड कंपार्टमेंट में आएंगे. यहाँ पे हमारे पास सोडियम आइंस प्रेजेंट है और हाइड्रोजन आइंस भी प्रेजेंट है. वी नो दैट रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड. अब इन दोनों में से रिड्यूस कौन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से ज्यादा है. सो एट कैथोड वाटर मॉलिक्यूल्स आर reduced to produce hydrogen gas and hydroxide ion. The overall reaction at the cathode is as follows. हाइड्रोजन आइंस कहाँ से आ रहे हैं, वाटर से आ रहे हैं. तो हम कह सकते हैं कि वाटर की रिडक्शन हुई, हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, साथ में हमारे पास हाइड्रोक्साइड आइंस भी प्रोड्यूस हुए. यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्साइड आइंस भी प्रोड्यूस हुए. इस बात को आपने ध्यान में रखना. अब देखते हैं हम रिएक्शन एट एनोड. वी नो दैट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड.
यहाँ पे हमारे पास क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस भी प्रेजेंट है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम देख सकते हैं क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है हाइड्रोक्साइड आयन से, सो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पे हम देख सकते हैं, और वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होगा और वो हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर सोडियम आयंस भी प्रेजेंट है और वाटर की रिडक्शन से प्रोड्यूस हुए हाइड्रोक्साइड आयंस भी प्रेजेंट है। सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस रिएक्ट करते हैं और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऑब्टेन होता है जिसे हम यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। अब जो यहाँ पे हमने डायफ्राम को यूज किया है, इसका बेसिक पर्पस ये है कि हम हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बने हम उनको सेपरेटली कलेक्ट कर सके और उनकी प्योरिटी को इंश्योर कर सकें। ये प्रोडक्ट्स की कंटेमिनेशन से बचाता है और इस बात को भी श्योर करता है कि हमारे पास कोई भी अनवांटेड बाय प्रोडक्ट ना बने। तो ये था हमारा डायफ्राम सेल प्रोसेस। अब हम डिस्कस करते हैं मर्क्यूरी सेल प्रोसेस। एनोड, ये हमारे पास एनोड है, यहाँ से हम अपना सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को एंटर करेंगे और यहाँ से हम अपने डिप्लीटेड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को वापस लेंगे। ये हमारे पास एनोड है। अब हम देखते हैं कि एनोड ग्रेफाइट एनोड है। We know that graphite is a good conductor. Oxidation of chloride ions occurs there. Again हमारे पास आयनाइजेशन हुई, हमारे पास आयंस यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लोराइड आयंस की ऑक्सीडेशन होगी, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होंगे जो कि हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास कैथोड है, over which liquid mercury is flowing. एक साइक्लिक वे में लिक्विड मर्करी फ्लो कर रही है। ये हमारे पास सोडियम डाइजेस्टर है। सो अब हमारे पास सोडियम आयन की रिडक्शन होती है, वो मर्करी के साथ रिएक्ट करके सोडियम अमलगम बनाते हैं जिसे हम इस सोडियम डाइजेस्टर में भेज देते हैं। अब देखते हैं कि सोडियम डाइजेस्टर में क्या होता है। अमलगम इज फॉर्म्ड इनटू दिस सेपरेट वेसल। Metallic sodium at the surface of the mercury can react with water to liberate hydrogen and produce sodium hydroxide. अब हम इस सोडियम डाइजेस्टर में वाटर को भेजते हैं, यहाँ से हमारे पास इंटर हुआ सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम और वाटर रिएक्ट करके हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम सेपरेटली कलेक्ट कर लेते हैं और हमारे पास मर्करी प्रोड्यूस होता है जिसको हम रिकवर कर लेते हैं। तो ये था हमारे पास मर्करी सेल प्रोसेस। अब हम देखते हैं मेम्ब्रेन सेल प्रोसेस। इसमें हमारे पास टाइटेनियम का बना हुआ एनोड है, where oxidation of chloride ions will take place और हमारे पास क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी जिसे हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास मेम्ब्रेन है जो कि पार्शली अलाउ करती है सोडियम आयंस को कि वो एनोड कंपार्टमेंट से कैथोड कंपार्टमेंट में जाए। ये क्लोराइड आयंस को कैथोड कंपार्टमेंट में नहीं जाने देती और हर किस्म के अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन को रोकती है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। कैथोड हमारे पास निकल या स्टील का बना हुआ कैथोड है। अगेन यहाँ पे वाटर की रिडक्शन होगी, हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी जिसे हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे और हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस भी प्रेजेंट है और ये वाले सोडियम आयंस जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करके यहाँ है वो भी प्रेजेंट है। सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस रिएक्ट करके हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे जो कि हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन हम कुछ नहीं देख सकते। ये था हमारा मेम्ब्रेन सेल प्रोसेस। अब हम जरा फ्लो शीट डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहले हम अपना ब्राइन को इस ब्राइन प्योरीफायर में डालेंगे। अब जो हमारे पास ब्राइन है वो प्योर नहीं है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी शामिल है। हम उन इम्प्योरिटीज को निकालना चाहते हैं। उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को इंटर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो भी इम्प्योरिटीज होंगी वो स्लज की फॉर्म में यहाँ नीचे अकोमुलेट होंगी जिनको बाद में हम रिमूव कर लेंगे। बाकी के सोल्यूशन को हम फिल्टर से गुजारते हैं ताकि इसमें किसी किस्म की भी कैल्शियम या मैग्नीशियम की या आयरन की कोई भी इम्प्योरिटी है उसको दूर किया जा सके। उसके बाद इसको स्टीमर से गुजारा जाता है। उसके बाद हम इसको डायाफ्राम सेल में भेज देते हैं जिसको हमने डिस्कस किया। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। इसी इंडस्ट्री में हम क्लोरीन भी हासिल कर लेते हैं और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है। इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अभी हम अपनी सोडियम हाइड्रोक्साइड पर फोकस करते हैं। अब जो डायाफ्राम सेल से हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास इतना ज्यादा प्योर या कंसंट्रेटेड नहीं होता। उसको हम मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर से गुजारते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑलमोस्ट 50%
तक कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लीन होता है। इसको प्योरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे इसको सेंट्रीफ्यूज में भेजते हैं, जहाँ पे ये सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को सेपरेट कर देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को वापस भेज दिया जाता है। अगर इसको 50% कंसनट्रेशन पे सेल करना चाहें तो वो भी सेल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो कि एज ए सॉल्ट स्लरी हमारे पास आई है, उसको हम अलग से एक साल्ट सेचुरेटर में भेजते हैं। यहाँ पे हम मजीद ब्राइन को ऐड करते हैं। जो हमारे पास सोल्यूशन आता है उसको हम फिल्टर से गुजारते हैं। फिल्टर से गुजारने के बाद हम उसको कांस्टेंट हेड फीड टैंक में स्टोर कर देते हैं। फिर हम उसको जब हमें चाहिए होता है हम उसको मर्करी सेल में भेजते हैं, जहाँ पे हमारे पास सोडियम अमलगम प्रोड्यूस होता है और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। क्लोरीन गैस को हम कलेक्ट कर लेते हैं। जो हमारे पास सोडियम अमलगम है उसको हम सोडियम डाइजेस्टर में भेजते हैं, जहाँ पे हम वाटर इंटर करते हैं और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम पहले फिल्टर से गुजारते हैं। फिल्टर से गुजारने के बाद हमारे पास 70% सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसनट्रेटेड फॉर्म में अवेलेबल होता है और हम उसको डायरेक्टली सेल भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारे पास क्लोरीन गैस डायफ्राम सेल से प्रोड्यूस हुई है और जो हमारे पास मर्करी सेल से क्लोरीन प्रोड्यूस हुई है, उसको हम ले जाते हैं वेट क्लोरीन प्रोडक्शन के लिए। सबसे पहले हम उसको स्टीमर से गुजारते हैं, उसके बाद हम उसको ड्रायर में ले जाते हैं। ड्रायर में हम इसको ले जाते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास गैस फॉर्म में, हम चाहते हैं कि हम इसको लिक्विड फॉर्म में स्टोर करें, इसलिए हम इसको कंप्रेसर से कंप्रेस करते हैं। उसके बाद क्लियोन रेफ्रिजरेंट में इसको स्टोर करने के बाद हमारे पास लिक्विड क्लोरीन स्टोरेज के लिए रेडी हो जाती है। ये था फ्लो शीट डायग्राम फॉर कॉस्टिक सोडा प्रोडक्शन। अब हम एप्लीकेशंस ऑफ कॉस्टिक सोडा को डिस्कस करते हैं। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, डिटर्जेंट्स, सोप, ब्लीच, डाइस में ये एज अ की इंग्रेडिएंट यूज होता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे कि सोडियम साल्ट, प्लास्टिक और फार्मास्यूटिकल्स में भी हम कॉस्टिक सोडा को यूज करते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस में भी हम कॉस्टिक सोडा को यूज करते हैं, जैसे कि पीएच एडजस्टमेंट के लिए, न्यूट्रलाइजेशन के लिए, हैवी मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए हम कॉस्टिक सोडा को यूज करते हैं। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में इसको वाइडली यूज किया जाता है। जो हमारे पास ओल्ड पेपर है उसको ब्रांड न्यू पेपर में कन्वर्ट करने के लिए, उसकी इंक को रिमूव करने के लिए हम कॉस्टिक सोडा को यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ब्लीचिंग प्रोसेस में हम कॉस्टिक सोडा को यूज करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको वेरियस स्टेजेस पे यूज किया जाता है। इसको एक प्रोसेस मर्सराइजेशन है उसके लिए एम्प्लॉय किया जाता है, जो कि जो कॉटन फाइबर्स है उनकी स्ट्रेंथ, उनकी लस्टर और अब्जॉर्बेंसी को इम्प्रूव करता है। आसान लफ्जों में हम कह सकते हैं कि ये कॉटन को श्रिंक होने से बचाता है। ये डिफरेंट डाइंग और फिनिशिंग प्रोसेसेस में भी यूज होता है। मेटल क्लीनिंग के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग या कोई भी प्रोसेस करने से पहले हम मेटल्स को अच्छे से क्लीन और डीग्रीज करते हैं कॉस्टिक सोडा की हेल्प से। कॉस्टिक सोडा मेटल से कोई किसी भी किस्म का ऑयल, ग्रीस या कोई भी कंटेमिनेंट प्रेजेंट है उसको रिमूव करता है और मेटल को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए प्रिपेयर करता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कॉस्टिक सोडा को वाइडली यूज किया जाता है। ये डीसल्फराइजेशन प्रोसेस में डिफरेंट सल्फर कंपाउंड्स को पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिमूव करता है और ये रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस में भी यूज होता है। सेफ्टी मेजर्स वी नीड टू अडॉप्ट व्हाइल हैंडलिंग कॉस्टिक सोडा। जब भी कॉस्टिक सोडा को इस्तेमाल करें तो पर्सनल सेफ्टी का खास ख्याल रखें। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिनमें हमारे पास सेफ्टी गॉगल्स, केमिकल रेजिस्टेंट ग्लव्स, लैब कोट्स आ जाते हैं, इनका अच्छे से ख्याल रखें, इनको यूज करें और ये सब गुड कंडीशन में होने चाहिए और प्रॉपरली फिटेड होने चाहिए। कॉस्टिक सोडा को हमेशा कूल और ड्राई प्लेस में स्टोर करें और ऐसे सब्सटेंसेस से दूर रखें जिनके साथ ये कोई वायलेंट रिएक्शन दे। उनको क्लोज कंटेनर में सेपरेटली स्टोर करें। कॉस्टिक सोडा को बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ हैंडल करें। अप्रोप्रिएट टूल्स और इक्विपमेंट को यूज़ करें ताकि कॉस्टिक सोडा का आपकी स्किन और आइस के साथ मिनिमाइज कॉन्टेक्ट हो। स्प्लैशिंग और डस्ट जनरेटिंग से अवॉइड करें। जो भी इंडिविजुअल्स कॉस्टिक सोडा के साथ डील कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो इसके हैजर्ड, सेफ्टी हैंडलिंग प्रोसीजर्स, इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल्स के बारे में प्रॉपरली ट्रेन हों। आई होप कि आपको मेरे सारे लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी और आप कॉस्टिक सोडा को खुद से समझ सकती होंगी। Thank you for joining me on this fascinating journey into the world of caustic soda. Stay curious, stay passionate, and until the next time, keep exploring the wonders of science.